Good morning, students. So, today we will study about biotechnology and its application, 12th chapter of your NCRT. So, as you all know, biotechnology deals with large scale production of biologically important products using live organisms. And in the application part, we will study about its application in the field of agriculture, in the field of medicine, processed food, bioremediation, waste treatment, and energy production. But before starting with application, first of all, we will study about the major research areas of biotechnology. So, the first major research area is um, the use of catalyst or to supply the best catalyst, which is in the form of either improved organisms, which you all know it is a microbe or a pure enzyme, which is generally a protein having better characteristics. The second one is to create optimal conditions, means the condition in which that enzyme can work. uh, Third is purification of protein that we have already studied in the downstreaming process that we studied in the last chapter. Now let's start with biotechnological application in the field of agriculture. So students, as you all know that in order to increase the food production, we have three approaches. The first one is agrochemical based agriculture. This means using fertilizers, herbicide, weedicides, etc. for increasing the yield. The second one is organic farming, and the third approach is genetically engineered crop. In this chapter, our main focus is on genetically engineered crop. उससे पहले हम थोड़ा सा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं. आपको पता है जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे द फूड प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, बट वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय हमने क्या किया, वी हैव इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स, बाय यूजिंग पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड्स. मीन्स हम केमिकल्स यूज़ कर रहे थे उस समय. इम्प्रूव वराइटीज़ भी यूज़ कर रहे थे, बट अलॉन्ग विथ दैट वी आर ऑल्सो यूजिंग केमिकल्स. अब ये जो केमिकल्स होते हैं, पहली बात तो दिस इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट. तो वो बायोमैग्निफिकेशन वाला प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, है ना? तो प्लांट एब्जॉर्ब भी कर लेता है, प्लस दीज केमिकल्स आर एक्सपेंसिव एंड फार्मर्स, एवरी फार्मर कैन नॉट अफोर्ड इट. दूसरा कि जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है, जो हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से बनाते हैं, कन्वेंशनल मेथड कौन सा होता है हमारा? हाइब्रिडाइजेशन वाला. तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ थी उससे और यील्ड इंक्रीज़ करना पॉसिबल नहीं था. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम वी स्विच्ड ऑन टू द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स. अब जब हम किसी भी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स, है ना? तो हम उनकी कौन कौन से एस्पेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं? वी कैन इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, विटामिन ए या विटामिन B12, ऐसे हम कोई भी न्यूट्रिएंट कंटेंट उसका इंक्रीज़ कर सकते हैं. उसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं. वी कैन मेक द प्लांट टॉलरेंट टू एबायोटिक कंडीशंस. Then the plant is generally the growth of plant, you can say, is dependent upon the use of chemical pesticide. तो क्योंकि जो क्या होगा, पेस्ट होगा दैट विल अटैक द प्लांट, और उस केस में अगर प्लांट रेजिस्टेंट नहीं है तो वो प्लांट की यील्ड में बहुत फ़र्क पड़ेगा. तो हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द efficiency of mineral usage by the plant. Disease resistant crop varieties can be prepared, and micro propagation for biomass energy production can also be done. So these are some of the areas, or you can say some of the qualities which we can improve using genetically engineered plants, or using this technique of genetic engineering. These are, students, some of the genetically modified foods.
Now, students, in agriculture field, we have to study two main एप्लीकेशंस. तो यहाँ पर अभी हम बीटी कॉटन के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक आरएनए इंटरफेरेंस आपका प्रोसेस है. ये दो अप्रोचेस हैं जो हमने मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में करनी है अंडर द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. सबसे पहले हम बीटी कॉटन की बात करेंगे. तो जब मैं कह रही हूँ बीटी, तो बी फॉर बेसिलस एंड टी फॉर थ्रियोजेनेसिस. दिस इज़ अ बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन प्रेजेंट है जिसे हमने क्या किया, वी यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हमने ये जीन बैक्टीरिया में से निकाल के किस में इंसर्ट किया है, प्लांट में इंसर्ट किया है. तो जिस प्लांट में हमने इसे इंसर्ट किया है उसका हमने क्या नाम रखा, बीटी कॉटन. कॉर्न में इंसर्ट किया तो बीटी कॉर्न. ऐसी राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन, किसी में भी हमने क्या कर सकते हैं, हम इस जीन को इंसर्ट कर सकते हैं. इस जीन को इंसर्ट करने से हमारा क्या हो रहा है, वी आर क्रिएटिंग अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. इसका मतलब कि जिस प्लांट में ये जीन प्रेजेंट होगा दैट विल नॉट बी अटैक्ड बाय पेस्ट. और अगर पेस्ट इस पे अटैक करता भी है तो क्या होगा, पेस्ट खुद ही मर जाएगा. ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है. दिस इज़ द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, जिससे हम वो जीन निकालते हैं. एंड दिस जीन इज़ इंसर्टेड इनटू प्लांट्स. सबसे ज़्यादा कमर्शियल यूज़ में जो प्लांट है वो कौन सा है, बीटी कॉटन है. और हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now we will study about the mechanism of the action of this gene. अब ये जो जीन है बीटी क्राई जीन कहते हैं इसे. दिस जीन इज नोन एज क्राई जीन. और द प्रोटीन इट प्रोड्यूसेस इज नोन एज, क्या कहते हैं हम इसे, बीटी टॉक्सिन जीन. तो ये जो क्राई जीन है, दिस क्राई जीन एनकोड्स अ प्रोटीन. ये जो प्रोटीन होता है जब ये प्रोड्यूस होता है, दिस इज प्रोड्यूस्ड इन एन इनएक्टिव फॉर्म जिसे हम कहते हैं प्रोटॉक्सिन. बट एज सून एज द प्रोटीन इज इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट, तो वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इनएक्टिव प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म. एक्टिव फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो इंसेक्ट होता है उसकी गट में कैसा मीडियम होता है, एल्कलाइन. तो ये जो प्रोटीन है दिस गेट्स एक्टिवेटेड इन दिस एल्कलाइन पीएच. उसके बाद क्या होगा कि जैसे सपोज दिस इज द गट वॉल ऑफ द इंसेक्ट. तो यहाँ पर क्या है, सेल्स हैं. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस टॉक्सिक प्रोटीन इसकी सेल्स में क्या हो जाएंगे, यहाँ होल्स हो जाएंगे जिससे वाटर उसके अंदर एंटर कर जाएगा. सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा. एंड देन द सेल विल बर्स्ट. और सेल बर्स्ट होने की वजह से जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी. तो अगर इंसेक्ट प्लांट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है तो वो नहीं पहुंचा पाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस क्राई जीन. अब ये जो क्राई जीन है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही जीन है जो सारे प्लांट्स के लिए या सारे इंसेक्ट्स के लिए यूज हार्मफुल है. क्राई 1AC और क्राई 2AB, दिस इज यूज्ड अगेंस्ट कॉटन बुलवॉर्म्स. एंड क्राई 1AB, this gene is used against corn borers. So this is all about the mechanism, how this gene works in the plant and in the insect. This is the diagrammatic form of the mechanism. This BT is in active form. Sometimes it is sprayed on the crops also, and when the insect eat it the toxin gets activated. Why it gets activated? Because of the alkaline pH, and then that results in the lysis of the cells of the gut, and because of that the cells swell up and burst. That leads to death of the insect.
This is all about BT cotton. Now moving forward to the next topic, pest resistant plant. Here also we are creating a pest resistant plant, but we are using a different technique, and the name of the technique is RNA interference. So again, what you have to remember here is the name of the technique is RNA interference. कर क्या रहे हैं हम एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्रिएट कर रहे हैं. इस मैकेनिज्म को साइलेंसिंग, आरएनए साइलेंसिंग भी कहते हैं. क्यों आरएनए साइलेंसिंग कह रहे हैं? बिकॉज वी आर साइलेंसिंग द ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए. स्टूडेंट, आपको पता है पहले हमारे पास क्या होता है, ये डीएनए होता है. डीएनए से एमआरएनए बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. अब क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, डीएनए से एमआरएनए तो बनेगा, बट एमआरएनए आगे प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा. यानी ये प्रोसेस हमने स्टॉप करना है एमआरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होने का. और अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो जो भी पेस्ट है हमारा, दैट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एंड इट विल डाई. अब एमआरएनए आगे ट्रांसलेट क्यों नहीं होगा ये देखते हैं हम. ये जो मैकेनिज्म है आरएनए इंटरफेरेंस, दिस टेक्स प्लेस इन ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ नेचुरल सेल डिफेंस. ठीक है, ओके. अब हम पढ़ते हैं साइलेंसिंग कैसे होगी. ये जो साइलेंसिंग होती है, ये सिंगल स्टैंडर्ड क्या है आपका? एमआरएनए. नाउ दिस इज साइलेंस्ड बाय अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए. अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है? तो इट कैन कम either from any virus or using recombinant DNA टेक्नोलॉजी. हम इस ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन रहा है, इसका जो बेसिक जीन है, हम क्या कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं प्लांट में. तो हम देखते हैं कि ये प्रोसेस हम कैसे करेंगे. ठीक है, तो अब हमने क्या कहा कि यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वी आर इंसर्टिंग दैट जीन. तो जीन इंसर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई वेक्टर चाहिए. तो यहाँ पर हम वेक्टर क्या यूज़ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम. अब हम क्या करेंगे, जो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन थी, एक और पॉइंट स्टूडेंट यहाँ जो आपने ध्यान रखना है, ये जो मैकेनिज्म है ये किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं? अगेंस्ट अ नेमेटोड. इस नेमेटोड का नाम है मिलाइटोगाइनी इनकॉग्निशिया, जो टबैको प्लांट की रूट्स को अफेक्ट करता है जनरली. तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसजेनिक टबैको प्लांट बना रहे हैं बाय इंसर्टिंग दिस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इनटू द टबैको प्लांट. अब जब टबैको प्लांट, जो ट्रांसजेनिक टबैको प्लांट है हमारा, उसमें क्या होगा, इस ये जो हमने डीएनए इंसर्ट किया है, इस डीएनए की वजह से दो आरएनए बनेंगे, सेंस स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड. और दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो वो क्या कर जाएंगे, आपस में बाइंड कर जाएंगे. और जैसे ये रहा आपका एमआरएनए जो नेमेटोड का है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गया इसका, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा. एक्चुअली में जब ये बाइंड कर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये डाइसर एक एंजाइम होता है, उससे ये पीसेस में कट हो जाता है. ठीक है, और उसके बाद इट विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी तो जो नेमेटोड है दैट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट था वो हमारा क्या हुआ, दैट इज prevented from getting infected by the nematode. So this is the general process of RNA interference. ध्यान क्या क्या रखना है, ये जो मेथड है ये किस में यूज़ हो रहा है? टबैको प्लांट में. जो टबैको प्लांट है उसकी जो रूट्स होती हैं, दैट गेट इन्फेक्टेड बाय अ नेमाटोड. और नेमाटोड का नाम क्या है? मिलाइटोगाइनी इनकॉग्निशिया. सो हेयर इन दिस स्लाइड इट इज़ रिटन, थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल में लिखा है मिलाइटोगाइनी इनकॉग्निशिया, रूट्स ऑफ टबैको प्लांट. सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी द स्पेलिंग ऑल्सो. और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो पेस्ट है उसका जो स्पेसिफिक एमआरएनए है जिससे प्रोटीन बनता है, उसको साइलेंस कर रहे हैं. साइलेंस कैसे कर रहे हैं? बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए. ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ से आया? आइदर फ्रॉम द वायरसेस ट्रांसपोजोन
या हमने उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्लांट के अंदर क्या किया, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, प्लांट के अंदर वो जीन इंसर्ट किया। पर जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे हैं तो हम वेक्टर क्या यूज़ कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम। और इस एग्रोबैक्टीरियम से हमने क्या किया, वो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को प्लांट के अंदर इंसर्ट किया, जिससे प्लांट ने क्या किया, डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाया, सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड, जो किससे जाकर बाइंड कर गया, एमआरएनए के साथ जाके बाइंड कर गया। और उसके बाद एक डाइसर एंजाइम होता है जो उसे कट कर देता है, और जिसके कारण जो एमआरएनए था वो ट्रांसलेट नहीं हुआ, और क्योंकि ट्रांसलेट नहीं हुआ प्रोटीन नहीं बनी, जिससे जो पैरासाइट था वो सर्वाइव नहीं कर पाया और हमारा प्लांट इन्फेक्टेड होने से बच गया। सो दिस इज़ अबाउट द जनरल प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। यही तो आपके मेन टॉपिक्स हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. Up students, that's all for this video, and in the next video we will study about the application of biotechnology in the field of medicine. Thank you. Have a nice day.